Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the B.Ed aspirants for the year 2024 because we'll be talking about the complete B.Ed syllabus. If you're planning to appear for the B.Ed exams, then you have come to the right place. In this video we'll be discussing the different sections of the B.Ed CET syllabus in detail. सो अगर आप एक एस्पिरेंट हो जो कि B.Ed के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर द ईयर 2024, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. स्टे ट्यून विद मी इन दिस वीडियो टिल दी एंड और शेयर कर दो अपनी वीडियो सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि B.Ed के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ELCT के लिए फॉर द ईयर 2024. बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू B.Ed BEAT लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशंस, लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स आपको सबसे पहले मेन्यूअर B.Ed एंट्रेंस पर देखने मिलेंगे. तो अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर B.Ed एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो. इफ यू वाचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर एजुकेशन देन द लिंक फॉर मेन्यूअर B.Ed एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन. Don't forget to check it out. If you want to start your preparations for the next year or subsequent years, we have launched the batches for the same. For the live class and online session, you can contact the number 8828581455 or 54. And if you are in Mumbai looking for classroom coaching, you can visit our centers Vasai, Dadar, Borivali, Thane, and Andheri. And we are soon coming up with a new center in Pune as well. In case you don't miss any of the important notifications and updates, you can follow us on social media such as Telegram, Instagram, Facebook, and don't forget to subscribe to the YouTube channel Manual B.Ed Entrance. Regardless of the batches you have joined, you will be provided with the video lectures, full length and sectional mock tests, books and ebooks, mentorship strategies, and a lot more things. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. Now, the very first section of B.Ed CET syllabus is General English Comprehensive. This section tests your proficiency in English language. Questions in this section are designed to test your vocabulary, your grammar, your comprehension skills, and lot more. Some of the topics covered in this section includes sentence correction, synonyms and antonyms, idioms and phrases, and a lot more. To ace this section, you need to make sure that you read newspapers on a daily basis. Start with the Indian Express. If you are well versed in English, then you can move to the Hindu newspaper, which is the toughest in India. You can start with these newspapers to build up your vocabulary and inculcate a reading habit. You can also use some dictionary if you come across any of the difficult words. Look for the online resources that can help you have an upper hand in your English language. So this way you can tackle up with the General English Comprehensive section. Next we move to General Knowledge and Current Affairs, one of the most important section and one of the most vast section because GK is so vast. आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. दिस सेक्शन टेस्ट योर नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस. तो अगेन इसके लिए आपकी न्यूज़पेपर जो हैबिट है वो काम आएगी बिकॉज न्यूज़पेपर से आपको मोस्टली जो भी करंट डेटा होगा वो आपको पता चल जाएगा. अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने की एक हैबिट होगी, करंट डेटा के साथ आप बिल्कुल अवेयर होगे एंड जनरल अवेयरनेस भी होगी आपके पास कि आपके इन एंड अराउंड एक्चुअली हो क्या रहा है, सो दैट आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी काम आने वाला है. Questions in this section covers a wide range of topics including history, geography, politics, इसको polity भी कहा जाता है, economy, science and technology, sports, awards and honors, books and authors. तो ये सेक्शन इतना वास्ट है कि आप पूरा पढ़ के तो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला. तो आप न्यूज़पेपर आज से ही स्टार्ट कर दो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाला है, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपकी जनरल नॉलेज वैसे भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और एक रीडिंग हैबिट भी आपकी इनकलकेट हो जाएगी. देन वी हैव लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. दिस सेक्शन असेस योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटीज़. क्वेश्चन इन दिस सेक्शंस आर डिजाइंड टू टेस्ट योर एबिलिटी टू एनालाइज एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग काफ़ी लगाना पड़ेगा. यहाँ पर लॉजिकली आपको हर एक चीज़ को सोचना होगा एंड उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे.
Some of the topic covered in this section includes verbal and non-verbal reasoning, analogies, series completion, coding and decoding, blood relations, directions, ranking and order, data sufficiency. तो ये लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके लाइफ में भी ये काफ़ी काम आने वाला है, सो दैट आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव जनरल टीचर एप्टीट्यूड. दिस सेक्शन evaluates योर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स टीचिंग. आप कैसा एटीट्यूड रखते हो एज अ टीचर, क्या एप्टीट्यूड होता है आपका, ये सारी चीज़ें ये सेक्शन टेस्ट करता है. क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन कवर्स टॉपिक लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, आप कितने अच्छे से क्लासरूम मैनेज करते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर कोई स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट है आप कितना अच्छा उसको कॉन्फिडेंस देते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है कम्युनिकेशन में, टीचिंग स्किल्स, आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आर यू वेल वर्स्ड विथ न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर कमिंग इनटू द एजुकेशन फील्ड, वो भी टेस्ट किया जाएगा, करिकुलम एंड पेडागोगी, एजुकेशनल फिलोसॉफी. तो ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट टीचर बनाती है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And last but not the least, you should know the subject specific knowledge. The fifth and final section of the B.Ed CET syllabus is subject specific knowledge. This section assess your knowledge of the subject you want to teach. अगर आपको मैथमेटिक्स में अपना करियर परस्यू करना है, इफ़ यू वांट टू बी अ मैथ टीचर, तो आपको मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा आना चाहिए. इफ़ यू वांट टू बी अ साइंस टीचर, आपकी उस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस, तो आपको पर्टिकुलर डोमेन में, जो भी डोमेन आपने अपने करियर के लिए चूज़ किया है, उसमें आपको वेल वर्स्ड होना पड़ेगा. द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सेक्शन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन चूजन बाय द कैंडिडेट. तो अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो, आपने कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ की है, सच एज आपको एक मैथ टीचर ही बनना है, आपको साइंस टीचर ही बनना है, आपको सोशल साइंस में ही अपना डोमेन परस्यू करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर डोमेन या फिर पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक भी होंगी आपकी. सो गाइज, ये था सिलेबस वाइज ब्रेकअप B.Ed के लिए, कि आपको सिलेबस कि आपके क्या सिलेबस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एज अ B.Ed एस्पिरेंट, क्योंकि कल को आप एक टीचर बनने वाले हो. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दे आर अप्लाइंग फॉर द लेटेस्ट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न्स. तो अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाना चाहते हो थ्रू B.Ed, तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करते रहना कि अगर कोई सिलेबस में चेंज होता है तो आपको उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करना है. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस. अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन.